Yes, a foreign national can invest in India provided he should be of Indian origin, which means whether he was born in India or his parents or grandparents were born in India. Can an overseas company or trust buy our property in India? Actually, no, because FEMA, that is Foreign Exchange Management Act in India, does not allow FDI investment in Indian real estate. सर जैसे कोई प्रॉपर्टी सेल करने पे इंडियन टैक्स रेजिडेंट को एक एग्जेम्पशन मिलता है, वैसे ही क्या एनआरआई को भी मिलता है? You mean in capital gain? इन कैपिटल गेन, राइट? Yes, absolutely. जो income tax law है, it doesn't differentiate between non-resident Indian OCI or normal tax resident in India. And there is another section 54 है. उसमें क्या होता है कि अगर आपकी कोई non-residential asset है, for example gold है, plot है, shares हैं, तो अगर आप उन पैसे को भी आपको exemption मिलेगी capital gain में if you invest in Indian real estate within specific. Hi everyone, my name is Pradeep Gujral. My company, PRG National, has helped a number of NRI clients in last 3 years in completing their financial transactions, whether it's in real estate, stock market, or other financial products, for example, investing in mutual funds. We got a very good team of premium researchers, premium brokers, RERA lawyers, FEMA lawyers, Indian chartered accountants, Australian chartered accountants, financiers, both in India and Australia. We can help them to resolve if they are seeking any help in individual avenues, or we can offer them end-to-end solution for their investments. Can a person living overseas invest in India? Yes, an overseas national can buy a property in India, provided he should be of Indian origin. So by Indian origin, we means whether either he should be born in India or his father or maybe grandparents, they are born in India. Also, that person should hold an OCI. What is OCI? OCI means Overseas Citizenship of India. This is a card issued by Government of India, which allows the card holder to live, work, and travel indefinitely in India. It also provides a right to buy or invest in real estate property in India, except agricultural land or plantation property. It is sort of pseudo citizenship, but it doesn't give the voting right to the holder of the OCI. So, yeah. Can an overseas company or trust buy our property in India? Actually, no, because FEMA, that is Foreign Exchange Management Act in India, does not allow FDI investment in Indian real estate. So, if the investment is done by overseas company or trust, it's considered as FDI. So, only an individual who is an OCI holder who lives overseas can buy real estate in India in his individual capacity. Can an overseas investor avail a bank loan in India? Yes, definitely. An overseas investor who wishes to invest in Indian real estate can apply for bank loan, provided that property should be approved by a bank itself. So it's case by case basis. And also the credit rating of that person, which is known as CIBIL score in India, should be good. Okay. Can an NRI sell immovable property other than agricultural land in India? Yes, absolutely. जो भी प्रॉपर्टी एनआरआई ने यहाँ पे एक्वायर की है वो, या फिर उसको जो इनहेरिटेंस में मिली है, दैट पर्सन कैन सेल एनी प्रॉपर्टी. सर जैसे आपने बताया था कि एग्रीकल्चर लैंड ओसीआई नहीं एक्वायर कर सकते, तो अगर उनको इनहेरिट में कुछ मिला है प्रॉपर्टी जो कि एग्रीकल्चर लैंड है, तो क्या वो पास ऑन हो सकता है एनआरआई पे? यस, एब्सोल्युटली. जैसे हमारी बात हुई थी, एन ओसीआई होल्डर कैन नॉट एक्वायर एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया. इट्स नॉट अलाउड टू हिम. अगर उसको वो इनहेरिटेंस में मिल रहा है, देन इट्स अलाउड. सो दैट पर्सन कैन इनहेरिट एग्रीकल्चर लैंड एंड इवन सेल इट. अभी तक सर आपने बताया कि अगर किसी को प्रॉपर्टी बाय करनी है, बट अगर हमें सेल करनी है और जो हमारे पास अमाउंट है सेल करने के बाद का, उसका रिपेट्रिएशन कैसे होगा इंडिया के बाहर? अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया में सेल करते हैं, एज्यूमिंग दैट पर्सन इज एनआरआई, राइट, तो सबसे पहले एक ऑब्लिगेशन है जो कि बायर के ऊपर है. सो द बायर हैज टू डिडक्ट TDS of 12.5% as of now from the sales price. However, अगर प्रॉपर्टी में इतना गेन नहीं है, तो जो सेलर है वो आरबीआई को
कम TDS के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अब अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, तो जो टैक्स डिटर्मिन होगा वो उसकी टैक्स रेजिडेंसी के ऊपर होगा। इफ दैट पर्सन इज रेजिडेंट, टैक्स रेजिडेंट इन इंडिया, यहाँ पे हम उसकी फॉरेन नेशनैलिटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम उसकी टैक्स रेजिडेंसी की बात करेंगे, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नेशनैलिटी इटसेल्फ। तो एज्यूमिंग वो अभी नॉन रेजिडेंट टैक्स होल्डर है, तो उसमें क्या होगा कि उसका जो उसका पैसा आएगा, जो सेल्स प्रोसीड जाएंगी, दैट विल गो इनटू एनआरओ अकाउंट। वंस द टैक्स विल बी पेड, और जो उसमें विल कंसिडर द TDS एज वेल जो पहले है, सो जो टैक्स लायबिलिटी अगर उसकी सेटल हो जाएगी, उसके बाद दैट मनी फ्रॉम एनआरओ कैन बी रिपैट्रिएटेड बैक टू अदर कंट्री फ्रॉम इंडिया। ओके। अगर कोई NRI कॉमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करते हैं और वो उसको रेंट पे डाल देते हैं, तो उनका रेंटल इनकम कैसे ट्रीट होगा, उस पे टैक्सेशन क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। सो अगर कोई NRI अपनी कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज को रेंट पे देते हैं, सो दैट रेंटल इनकम शुड बी क्रेडिटेड इनटू एनआरओ अकाउंट, जो कि लोकल अकाउंट होता है इन रुपी, एंड दैट इनकम विल बी कंसिडर्ड एज इंडियन इनकम बिकॉज इट जनरेटेड एंड अक्रूड इन इंडिया। उसका जो ट्रीटमेंट है वो टैक्स ट्रीटमेंट है, इट विल बी टैक्स्ड इन इंडिया ओनली। सर, जैसे भी हमारी बात हो रही थी NRI की प्रॉपर्टी के लिए, हमने कोई प्रॉपर्टी सिलेक्ट की, तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, पेमेंट स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, पेमेंट होगा कैसे? ओके, हाउ वी हैव सिलेक्टेड द प्रॉपर्टी, उसका जो पेमेंट स्ट्रक्चर है दैट इज डिटरमाइंड बाय द बिल्डर, ओके, या बाय द सेलर, या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट से कि हमें कितनी पेमेंट कब करनी है। अब बात आती है कि विच आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। राइट। वी हैव टू प्रोवाइड OCI, 100 पॉइंट्स ID चेक जिसको कहते हैं, और इंडिया में KYC कहते हैं। तो वी हैव टू प्रोवाइड कॉपी ऑफ द पासपोर्ट, ड्राइवर्स लाइसेंस फॉर द एड्रेस प्रूफ, इंडियन परमानेंट अकाउंट नंबर विच इज इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि ट्रैक करता है कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो रही है और कल को अगर कोई कैपिटल गेन है, इट विल बी ट्रैक बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो पैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स वी नीड टू प्रोवाइड इट बिल्डर। The most important requirement is to provide the bank account details as well. So जो बायर है उसके 2 बैंक अकाउंट इंडिया में खुलेंगे। सो 2 अकाउंट होते हैं, NRE अकाउंट और NRO। NRE अकाउंट जो होता है वो नॉन रुपी एक्सटर्नल अकाउंट होता है, और जो NRO अकाउंट होता है वो लोकल ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है। सो द पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी पेड either by overseas bank directly into the builder's account or by NRE और NRO account. So it's advisable कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है ओवरसीज से, तो या तो वो ओवरसीज बैंक से करे या NRE अकाउंट से करे। रीजन बीइंग क्योंकि जब रिपेट्रिएशन होती है, सो इट्स फुली अलाउड फॉर 2 प्रॉपर्टीज इफ इट्स पेड बाय NRE अकाउंट, बट इफ इट्स पेड बाय NRO अकाउंट, then the limit for repatriation per financial year is $1 million. So it's always advisable to make the payment through NRE account or directly from overseas account. सर, जैसे कोई प्रॉपर्टी सेल करने पे इंडियन टैक्स रेजिडेंट को एक एग्जेम्पशन मिलता है, वैसे ही क्या NRI को भी मिलता है? You mean in capital gains? इन कैपिटल गेन, राइट? Yes, absolutely. जो इनकम टैक्स लॉ है, it doesn't differentiate between non-resident Indian OCI और normal tax resident in India. So उसमें कोई भी वो डिफरेंशिएट नहीं करते। So अगर कोई NRI भी अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है, so section 54 applies to that person as well. So he can avail exemption under section 54, जो ये कहता है कि उसकी अगर अपनी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वो सेल करता है, तो अगर वो ही उसमें से कुछ कैपिटल गेन आता है, अगर वो उस कैपिटल गेन को री इन्वेस्ट कर देता है इन बाइंग अ न्यू प्रॉपर्टी विद इन लाइक 1 year बिफोर सेलिंग और आफ्टर और 2 years आफ्टर सेलिंग दैट, सो अगर इस टाइम लिमिट के अंदर वो प्रॉपर्टी बाय कर लेता है, उसके जो कैपिटल गेन जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उसमें उसको इतना अमाउंट की एग्जेम्पशन मिल जाती है। और इफ ही इज कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू प्रॉपर्टी, तो उसको वो 3 साल का टाइम पीरियड मिल जाता है। ओके। कि अगर वो उसने अपना कोई उसको कैपिटल गेन हुआ, तो वो कैपिटल गेन के ऊपर एग्जेम्पशन 3 साल तक के लिए अप्लाई हो जाएगी। इट मीन्स दैट ही विल हैव 3 years टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट टू अवेल दैट एग्जेम्पशन। एंड देयर इज अनदर सेक्शन 54F। उसमें क्या होता है कि अगर आपकी कोई नॉन रेजिडेंशियल एसेट है, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, प्लॉट है, शेयर्स हैं, तो अगर आप उन पैसे को भी
आपको एग्जेम्पशन मिलेगी कैपिटल गेन में इफ यू इन्वेस्ट इन इंडियन रियल एस्टेट विद इन स्पेसिफाइड टाइम. Okay. Can OCI holder avail exemption under Section 54? Yes, absolutely. Section 54 is also applicable to OCI holder as well. Section 54 में क्या है कि अगर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है लेकिन उस पैसे को री इन्वेस्ट कर देता है इंडिया में विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, जैसे कि वो टाइम पीरियड में भी 1 साल पहले तक का या विद इन 2 years उसके बाद तक का. I would like to advise if someone has any sort of query in regards to investment in India, then please feel free to contact us. Our team will try our best to resolve your query ASAP. Thank you.